गोवा की राजनीति में अक्सर किंग मेकर कहे जाने वाले एमजीपी के सुदीन धवलकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक बड़ा आश्चर्य यह था कि एमजीपी ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया, जबकि एमजीपी ने टीएमसी के साथ अलायंस किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने फैसला कर लिया कि बीजेपी को समर्थन देना चाहिए? नंबर एक, वेरी सरप्राइजिंग that we have said during the time of the election that if clear mandate comes to BJP, minimum 22, or Congress or any other party, it will be better. But this mandate is a fractured mandate in Goa. It was surprised that the mandate given by the people of Goa, voters of Goa, are 20 for BJP, 11 for Congress, 2 for AAP, 2 for MGP, 1 for Revolutionary, and 1 is Goa Forward, and 3 independent. Considering all these factors, we have to run 5 years government. And mandate given by the people is fractured. Now, to come over this, considering 11 and plus 1, 12 from Goa Congress, it is very difficult to give a good governance. So, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप बीजेपी के साथ आए हैं या फिर there has been a change of heart as well? No. I have come on technical ground that some administration, some good governance has to be given, and that is the reason it is only possible by supporting to the BJP. तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने आपको अप्रोच किया या इलेक्शन का रिजल्ट्स देखे आपने बीजेपी को अप्रोच किया? नहीं, मैं किसी को अप्रोच नहीं किया है। देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आए थे, उसने कॉल किया, बाद में मैं और जो अध्यक्ष है पार्टी का दोनों और हमारा जो जीत आरोलकर है, वो तीनों जो सेकेंड एमएलए, वो तीनों जाकर हम मिला, उन लोगों को बोला कि ऐसा ऐसा है, अनकंडीशनल सपोर्ट आप कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ बात तो आपने कही होगी ना सपोर्ट? कुछ बोला नहीं, एक ही बात बोला कि अनकंडीशनल सपोर्ट मैं करता हूं, प्रोवाइडेड यू शुड नॉट एनी टाइम बार्गेन विद द पार्टी और ब्रेक द पार्टीज. That is what I told, and he accepted. He says that if you come with us, it will be 20 plus 2 plus 3. 3 independent are already joined to them. आपको क्या मिल रहा है इस अलायंस में? अभी तक मैंने कुछ मांगा नहीं. क्या उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, कुछ उम्मीद रखा नहीं है. पहले गुड गवर्नेंस वी हैव टू गिव. Our financial position is not good. We have to see how it will be improved. And then only we can think of asking something to others. पार्टी पहले भी कह चुकी है, इलेक्शन से पहले भी कही, इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आ रहे थे उस दिन तक भी कहा कि वी हैव बीन अ किंग मेकर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब तो किंग बनना चाहिए. इस पर आप क्या कहेंगे? Of course, we were the king makers long time. Every time, right from 1984 till today, we are the people. MGP is the party who made every government in Goa. I am proud that this time also we would have been, but because of some and other reasons, we lost 4 seats with a margin of say about 400 to 73. तो अगर इस बार कुछ नहीं मिलता, you'll be happy और कुछ उम्मीदें हैं? If they are giving good governance and as per the talk to Amit ji और हमारा जो president of party है फडणवीस जी है, उनके पास जो मैं बात किया उससे उन लोगों के मैंने आज तक कुछ नहीं पूछा. मैंने इतना ही बोला कि हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं, जैसा मैं पहले उन लोगों को सपोर्ट दिया था वैसा ही हम काम करेंगे. तो ये सपोर्ट सिर्फ हाल फिलहाल का है या ये 2024 तक भी जाएगा? ये 5 बरस का सपोर्ट है. ये 1-2 महीने का 2 बरस का सपोर्ट नहीं है. ये 5 बरस तक हम लोग इकट्ठा रह के काम करेंगे, ऐसा मैं आप उन लोगों को बोला है. एक तरफ आपने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड पे आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा कि जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि आप दोनों नेचुरल एलाइज हैं, तो क्या समझा? It is correct. Right from 1994, when BJP got elected 4 MLAs, at that time we got elected some 16 MLAs, and we were together, but we could not make it that time government. Now, because of natural allies only, we came together. लेकिन फिर पिछले बार तो राहें अलग-अलग हो गई. 1999 there was a break, but in 2012, when Gadkari ji was the president of the party and here Manohar Parrikar was the leader of the party, we came together. We won 21 plus 3, 24.
And we were there. We were doing good work. We have done good work. Lot of projects have come with the help of Nitinji Gadkari, Amit Ji Shah, and Prime Minister of India. And we have done lot of good work in Goa. Maybe that is there in their mind. And because of that, they might have approached us. कई इसमें आवाजें हैं बीजेपी में इस वक्त जो आपके बीजेपी को समर्थन देने से नाखुश हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता है। जो समर्थन मैंने दिया है वो भारतीय जनता के उच्च प्रस्थ जो दिल्ली में है उनके कॉल के ऊपर मैंने ये समर्थन दिया है। जो कुछ इसके ऊपर बोलने का है वो लोग बोलेंगे। नितिन जी, फडणवीस जी, वो दयानंद नड्डा जी और अमित शाह जी। कहा यह जा रहा है ना कि आप लोगों ने कहा था प्रमोद सावंत जी के साथ तो आप काम ही नहीं करेंगे। आप वहां पर अगर कहा जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री 1917 का इश्यू है। जो 1917 में मैं प्रमोद जी को बोला था कि तुम काम करो, तुम चीफ मिनिस्टर हो जाओ, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। मैं बोला था, पूछो उसको जाके, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करके दिखेंगे। लेकिन वो मेरे निकालने के बाद मेरे को थोड़ा दुख हो गया। गिले शिकवे भी दूर नहीं हुए। Of course, that keeps in the mind almost say about 10 years. But जो आगे आगे बढ़ना मांगता है और जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा गवर्नेंस मांगता है, तो कोई ना कोई सपोर्ट देना ही पड़ेगा। वो चीफ मिनिस्टर वो लोग डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर मैं अभी नहीं बोल सकता हूं। जो चीफ मिनिस्टर वो लोग देंगे, उसको सपोर्ट करने का मेरा। टीएमसी तो कहेगी धोखा दे दिया आपने। नहीं, टीएमसी को मैं धोखा नहीं दिया है। टीएमसी का एक ही आदमी यहाँ आया नहीं है और जो आए हैं वो लॉस बाय 500। अवसरवादिता का अलायंस नहीं हुआ गया? नहीं, हम ऐसा कोई नहीं है कि हमने टीएमसी को धोखा दिया। टीएमसी को धोखा देने से हमको क्या मिलेगा? टीएमसी अभी आगे क्या करती है वो भी मालूम नहीं। वो कुछ करते हैं तो देखेंगे आगे। आखिरी सवाल है, बीजेपी के साथ जो 5 साल की बात कर रहे हैं, ये रिश्ता जुड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा? As per the mandate given to them and to us, we have to accept it. क्योंकि गोवन पॉलिटिक्स में ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है। That is the reason. As per the mandate given by the people of Goa to them and to us, we have to come together to give a good administration, good government. मजबूरी में दे रहे हैं सपोर्ट या खुश हैं अब बीजेपी? नहीं, मजबूरी में भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी देना ही पड़ता है। देने के बाद, अच्छा काम करने के बाद सब मालूम है। उम्मीदें जरूर हैं आपको इस अलायंस। डेफिनेटली। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।